آج شام میرے ساتھ دیکھیے قرآن کے زندہ کلام مقدس میں آموس نبی کا صحیفہ قرآن عہد نامہ میں، یہ آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 861 پر 861۔ آموس نبی کا صحیفہ قرآن عہد نامہ میں 4 باب اس کی 6ویں آیت سے قرآن کے کلام سے تلاوت کریں گے، اور پادری شہزاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہماری پڑھنے میں رہنمائی کریں اور اس کی 12 آیت تک تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ اور اگرچہ میں نے می کو جبکہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا، اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا، ایک قطعہ زمین پر برسا اور دوسرا قطعہ بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا، اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، پھر میں نے تم پر باد سموم اور گروئی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکر گاہ کی بدبو تمہارے نتھنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خداوند نے سدوم اور امورہ کو الٹ دیا تھا، اور تم اسی لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، پس اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا، اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے، اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ آمین آمین۔ کلام کا جو حصہ پڑھا گیا یہ بنی اسرائیل قوم سے خدا نبی کی معرفت مخاطب ہے۔ بنی اسرائیل قوم سے ہم سب واقف ہیں، خدا کے وہ لوگ جن کو غیر قوموں میں سے خدا نے لیا اور اپنے لیے الگ کر لیا، اور ان کے ساتھ خدا نے بڑے وعدے کیے۔ انہی میں سے بڑے نبی پیغمبر بائبل مقدس میں ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں اور ہم سب ان سے واقف ہیں، موسیٰ سے، ایلیا سے، ابراہم سے، داؤد سے، بہت سے بڑے لوگ۔ بنی اسرائیل قوم وہ لوگ جن کو خدا نے اپنے لیے الگ کیا۔ اب خدا ان سے مخاطب ہے کہ ان کی کیا حالت ہے اور خدا کس طرح سے ان سے کلام کر رہا ہے۔ جب ہم نے سارا یہ واقعہ پڑھا تو اس میں بہت سے ابتر حالات کا آپ کو ذکر ملے گا، بیماریاں آتی ہیں، بارش نہیں ہوتی اور بہت سی چیزیں خدا اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن 5 دفعہ اس میں لکھا ہے کہ تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ 5 کا عدد بائبل مقدس میں فضل کا عدد ہے۔ بارہا خدا نے ان کو موقع دیا کہ وہ میری آواز کو سنیں، لیکن انہوں نے نہ سنا۔ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں، اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی، اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی لوگ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، خدا میری زندگی میں یہ بات ہے، مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر، مجھ سے بات کر۔ خواہ وہ شخص چرچ جاتا ہے یا نہیں جاتا، وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ شخص اپنے دل کے اندر اس بات کو لیے پھرتا ہے، اور چلتے پھرتے جب کبھی اس کا دھیان خدا کی طرف آتا ہے تو وہ اس بات کے بے چین ہوتا ہے کہ کاش خدا مجھ سے بات کرے، کاش خدا مجھ سے بولے۔ بائبل مقدس میں بہت سے طریقے، انداز خدا کے بولنے کے ہیں۔ خدا اس طریقے سے بھی بولتا ہے جس طرح میں خداوند کی طرف سے آج آپ کو کلام سنا رہا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے خداوند کا۔ دوسرا، جب ہم بائبل مقدس کو خود پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے خود بھی بات کرتا ہے، اور خوابوں کے ذریعے خواب لوگوں کو آتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سے خوابوں کا ذکر ہے۔ خدا بارہا میرے وسیلہ سے بھی مجھے خدا نے بہت سی باتوں کے لیے خوابوں کے ذریعے رہنمائی دی اور براہ راست رہنمائی دی۔ خدا کا ایک اور طریقہ نبیوں کی معرفت کلام کرنے کا تھا، نبوت کی راہ سے۔ ابھی بھائی داؤد کے وسیلہ سے بھی خدا نے علمیت کے کلام کے وسیلہ سے بات کی۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب خدا کلام کرے گا تو وہ آزاد کرے گا، جب خدا بات کرے گا تو وہ برکت دے گا، جب خدا بات کرے گا تو وہ رہائی دے گا، وہ نجات دے گا، وہ چھٹکارا دے گا، وہ شفا دے گا۔ ہم جانتے ہیں، بائبل مقدس نہیں پڑھی ہے، جب بھی خدا نے کلام کیا خدا نے رہائی دی۔ جب سیموئیل نبی کے دور میں کلام میں لکھا ہے کہ کوئی رویا برملا نہ تھی، لوگ منتظر تھے کہ خدا کلام کرے،
कोई ऐसा शख्स जिसके वसीला से कलाम करे, ऐसे लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि जो खुदा के काहिन भी थे वो भी बुराई की तरफ रागिब हो गए और लोग इंतजार कर रहे थे शायद कोई शख्स। तो एक छोटे बच्चे शमूएल के वसीला से खुदा ने लोगों से कलाम किया। खुदा ने शमूएल को पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। जब एली ने बताया तो शमूएल को पता चला ये खुदा की आवाज है। तो कलाम में लिखा है कि बनी इस्राएल ने दान से पहले सबा तक जान लिया कि शमूएल नबी मुकर्रर हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कलाम किया। खुदा नबियों की मार्फत कलाम करता है। आज हम इस बात के मुंतजर होते हैं कि काश खुदावन के जो खालिम हमें ये बता दें कि हमारे घर के हालात और वो नजर मारे कैसे हैं, हमारे दिल के अंदर जो चल रहा है हमें बता दें कि क्या सूरत हाल है। उस दौर में भी गैर दीन जो थे वो गलत लोगों को गाइड करते थे। आज भी इस दौर में जो शख्स या जो पादरी या जो सियाना जादूगर इस तरह से बताना शुरू करे, लोग उसके पीछे जाना शुरू करते हैं। बड़ी जल्दी लोग रागिब हो जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि जिन हालात में हम मौजूद हैं ये क्यों है, हम कब इनसे हल पाएंगे और इनके पीछे किसका हाथ है। लोग ये जानना चाहते हैं। मैंने बताया खुदा नबूवत की राह से कलाम करता है, खुदा ख्वाबों के वसीला से कलाम करता है, खुदा खादमों के वसीला से कलाम करता है और खुदा ऑडिबल वॉइस के वसीला से आसमान से बराह रास्त लोगों को आवाज सुनाई देती है। इसका मुझे खुद जाती तौर पर तजुर्बा है। पुराने अहदनामा में आप देखें, नए अहदनामा में आप देखें, कलाम भरा पड़ा है। मूसा से खुदा बराह रास्त बात करता था, नबियों से बराह रास्त आवाज के जरिए से, अब्राहम से बराह रास्त खुदा ने आवाज के वसीला से कलाम किया। खुदा उस पर जाहिर हुआ। खुदा रोयाओं के वसीला से भी कलाम करता है। ये एक और तरीका है खुदा का कलाम करने का। लोगों को रोया मिलती है। रोया वो चीज है, आंखें बंद की हो या आंखें खुली हो, आपको खुदा दिखाता है कि आपकी क्या हालत है या आइंदा आने वाले हालात में क्या होगा। इसे रोया कहते हैं। लेकिन ये जागते में लोगों को मिलती है। ये भी एक तरीका है खुदा का कलाम करने का। और एक और तरीका, खुदा फरिश्तों को भेज देता है। भाई से खुदा ने फरिश्तों की मार्फत भी बारहा कलाम किया है, पादरी शहजाद साहब से। ये भी खुदा का एक तरीका है। हम ज्यादातर इन्हीं तरीकों से खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं। काश मुझे भी कोई फरिश्ता नजर आ जाए, काश मेरी भी आंखें खुदा खोल दे और मैं देख सकूं कि आसमान के अंदर क्या हो रहा है। अगर आज खुदा किसी की भी आंखें खोल दे, हम जो आसमान को खामोश देखते हैं ये खामोश नहीं है। इसके ऊपर बहुत 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 ऊंची आवाज में नरसिंगे फूके जा रहे हैं, तारीफ, सिताइश, हम, तमजीद ज़िबा के उबरने की जा रही है। फरिश्तगान, मुकद्दसीन दिन रात कलाम लिखे बगैर आराम किए हमद कर रहे हैं खुदावंद की। खुदा का तरीका है, खुदा आंखें खोल देता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा जिस तरीके से खुदा कलाम कर रहा है उस तरीके की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं। हम नबियों की मार्फत कलाम सुनना चाहते हैं, हम रोयाओं से खुदा का कलाम चाहते हैं, हम ख्वाबों के वसीले से खुदा का कलाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम बाइबल पढ़े तो हमें एकदम से खुदा बात करे और हमें आजाद करे। लेकिन आज ज्यादातर खुदा लोगों से जिस तरीके से बात कर रहा है, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं। इसराइल का भी ध्यान उस तरफ नहीं था। अभी हमने जो खुदा का कलाम पढ़ा, खुदा उसमें जो बातें बताता है उसमें बहुत से ऐसे काम खुदा ने किए, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नबी की मार्फत तो खुदा ने बाद में ये कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन उससे पहले क्या था? कलाम में लिखा है कि मैंने दांतों की सफाई की कमी दी। जब खाना नहीं होगा घर में खाने के लिए तो कौन दांत साफ करेगा? इसका मतलब भूख, रोटी की कमी खुदा ने दे दी, घर के अंदर पैसे की कमी दे दी, बिजनेस के अंदर खुदा ने कमी दे दी। खुदा हालात को तब्दील कर रहा है। खुदा चाह रहा है कि उसके लोग उसकी तरफ ध्यान करें। खुदा जिस के वसीला से सबसे ज्यादा बात कर रहा है वो है हालात की जुबान। घड़ी की टिक टिक के साथ इसकी आवाज आप सुन सकते हैं। घड़ी की आप सुई को जिस तरफ चलते देखते हैं उसकी आवाज जब हम सुनते हैं, रात की खामोशी में हमें ये आवाज सुनाई देती है। जब हम जाग रहे हो, अभी घरों में जो घड़ियां लगी हैं उसकी आवाज हमें अभी सुनाई नहीं देगी। जब हम रात में खामोशी में लेट जाएंगे तो उसकी आवाज हमें बहुत ज्यादा लगेगी। फिर वो ऐसा लगता कि वाली तो बहुत ऊंची है। कुछ लोगों को इससे परेशानी होती है, वो लाइट में नहीं सो सकते, कुछ आवाज शोर हो तो नहीं सो सकते। मैंने एक आध शख्स के ताल्लुक से ऐसा सुना
कि उसको इससे इतनी परेशानी थी कि उसने अपने पहले तो घर में जो है तकिए के नीचे वो घड़ी छुपा दी। जब उसको वो मुसलसल आवाज आती रही, उसने आखिर में वो घड़ी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहता। खुदा आज हमसे हालात की जुबान से बात कर रहा है। बनी इस्राइल भी उस वक्त में नहीं समझ रहे थे। आज ज्यादातर लोगों का हिस्सा, ईमानदार भी बहुत कम हालात की जुबान को समझते हैं। खुदा ने क्या क्या किया? रोटी की कमी दी। हम जिस मौसम में से गुजर रहे हैं, ये बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि इलाके पर बारिश होती है, दूसरे पर नहीं होती। लेकिन खुदा जिस बारिश की यहाँ पर बात कर रहा है वो बरसात की बारिश नहीं है। कलाम में लिखा है कि अगरचे मैंने मीह को जब फसल पकने में 3 महीने बाकी थे रोक लिया। फसल पकने वाली है, अब चाहिए कि उसके ऊपर बारिश हो ताकि फसल पक जाए। अब ये आम बारिश नहीं है। एक हिस्से के ऊपर तो बारिश हो रही है और दूसरे में सोका है, दूसरे में काल है, रोटी की कमी है। जब एक हिस्से पर बारिश होती है तो खुदा ये कलाम कर रहा है कि देखो, इन लोगों को मैं बरकत दे रहा हूँ, इन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों का ध्यान मेरी तरफ। लेकिन जिस हिस्से पर बारिश नहीं, खुदा ने खुद रोक लिया। खुदा हालात के वसीला से बात कर रहा है कि अब ये मेरी तरफ आएंगे कि खुदावन उन लोगों के ऊपर बारिश है, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन कलाम में लिखा है कि तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना ला। इस बात को भी देखकर लोग बनी इस्राइल कौम ने रुजू नहीं किया खुदावन से। और फिर लिखा है कि 2-3 बस्तियां आवारा होकर एक बस्ती में आई ताकि लोग पानी पिए। पानी की भी कमी, खुराक की भी कमी, पानी की भी कमी खुदा ने दी ताकि लोग ध्यान करें। खुदा कलाम कर रहा है कि अब शायद ये लोग मेरी तरफ आएंगे और मैं इनको बताऊंगा कि बेटा तू किस तरह चल रहा है, बेटी तू किस तरह चल रही है, तुम्हें इस तरह से नहीं इस तरह से चल रहा है। कलाम में लिखा है के खत में कि बस गौर करो किस तरह चलते हो। दानों की मानिंद चल रहा है, ना कि नादानों की मानिंद। हम किस तरह से चल रहे हैं, आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर से देखने की जरूरत है। खुदा हमारी जिंदगी में जो हालात मौजूद हैं, बार बार अगर एक चीज रिपीट हो रही है तो आप ये जान ले कि ये खुदा इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है, खुदा उनका हाथ इसमें मौजूद है। बनी इस्राइल कौम जब बियाबान में थे, हम सब जानते हैं कि उन्हें पानी की कमी, उन्हें रोटी की कमी, उनका झगड़ा खुदा के साथ यही था। उनका झगड़ा मूसा से वो नाराज इसीलिए थे कि यार तुम मिस्र से हमें इसलिए निकाल कर लाया ताकि हमें बियाबान में मारते। अब वो रोटी की कमी और प्यास की जो आजमाइश है उसमें क्यों बार बार मौजूद है? क्योंकि वो उस बात को सीख नहीं। बार बार वो मूसा से पानी के लिए लड़ते हैं, कभी वो गोश्त के लिए लड़ते हैं। आज लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा खुदा से लड़ ही रहा है। खुदा हमारी जिंदगी में ये नहीं है, खुदा हमारी जिंदगी में ये नहीं है, वो लड़ रहे हैं लेकिन वो अपने हालात पर नजर नहीं कर रहे कि खुदा उनसे क्या कलाम कर रहा है। खुदा ने बनी इस्राइल को उन्हीं हालात में रहने दिया और 40 साल वो उन्हीं हालात में रहे। अगर आज हम अपने हालात पर नजर नहीं करेंगे तो जैसे बनी इस्राइल 40 साल उन्हीं हालात में रहे, हम भी इसी तरह से साइकिल के अंदर रहेंगे, घूमते रहेंगे गोल चक्कर के गिर। अगर आज हम अपने उन हालात से जिनमें हम मौजूद हैं बाहर आना चाहते हैं तो खुदा की आवाज पर ध्यान, खुदा हालात की वसीला से बात कर रहा है। आप मुल्क पाकिस्तान के हालात देखें, बद से बदतर हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे। कोई भी चीज आप पकड़ के देख लें, आपको पीक पर मिलेगी। महंगाई पीक पर मिलेगी, आपको हर तरह का बुरा काम पीक पर मिलेगा। बारिशें होंगी पीक पर होगी, गर्मी आएगी पीक पर आएगी, और जब सर्दी आएगी तो वो भी धुआंधार सर्दी आएगी। हमारे मुल्क में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, हमारे सियासतदान वो भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ है नॉर्मल है। कोई भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहता। खुदा हालात के वसीला से बात कर रहा है। बनी इस्राइल कौम को जब खुदा मिस्र में लेकर आया यूसुफ के वसीला से तो 70 लोग थे वहाँ पर। जब वो रहना शुरू हुए तो वहाँ यूसुफ की वजह से वो बहुत बढ़ गए, बड़े उन्होंने आलीशान मकान बना लिए, बड़ा उनका दिल वहाँ पर लग गया। अब उनका दिल नहीं करता था वहाँ से जाने। 430 साल वो वहाँ पर रहे। कितने साल? 430 साल वो मिस्र में रहे। और अगर हम में से कोई अमेरिका चला जाए और वहाँ सेटल हो जाए तो क्या उसका दिल वहाँ से आने को करेगा? जैसे अभी मौजूदा हालात हैं और बंदे का दिल करता है यार साढ़ा वीजा लग गए तो असली बात है किसी तरीके ना कोई साड़ी बांह फाड़ने से। हम ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि यार शायद कोई बंदा ऐसा ला भी जाए जो साड़ा वीजा लो आ गए, या अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या अमेरिका इस बात को अनाउंस कर दे 1 घंटे के लिए आपको वक्त दिया जाता है, जो जहाज में सवार होना चाहता है हो जाए, क्या हाल होगा? जो जल्दी से
जहाज में चढ़ सकता है, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई टिकट नहीं। 1 घंटा पाकिस्तान के लोगों को दिया जाता है और जो जितनी जल्दी हो सकता है चढ़ जाए। तो फिर केड़ा पहले चढ़ेगा, क्या भी अंदाजा कर सकना? नहीं जी, कोई किसी को चढ़ो नहीं देगा, मैं चढ़ाऊंगा, मैं पहले चढ़ा हर बंदे ने दिल से। क्यों? क्योंकि पता है अमेरिका स्कूल है, अमेरिका के बारे में लोगों ने बड़ा सुना है कि यार उधर स्कूल है, उधर असल मसले मसाइल नहीं है जो सोसाइटी में। हर शख्स उसे जाना चाहता है, हर शख्स वहां पर क्यों रहना चाहता है? क्योंकि हर शख्स को पता है कि वो एक बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ कोई लाइन को नहीं तोड़ता, कोई किसी को धक्का नहीं देता। अगर बुजुर्ग लोग गाड़ी में चढ़ गए तो जवान उनको खुद जगह दे देते हैं। वहाँ मेडिकल फ्री है लोगों का, बूढ़ों का। अगर जो जॉब नहीं करता गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। वहाँ आप अपना बिजनेस आराम से कर सकते हैं, आपको मजहबी आजादी है हर तरह से। सड़कें साफ सुथरी, खाने पीने को अच्छी चीजें, आपको हर एक चीज जो है खाने पीने की जो मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, सेहतमंद मिलेगी। फल वहाँ के बहुत अच्छे हैं, इसलिए हर शख्स वहाँ जाना चाहिए। बनी इस्राइल कौम भी 430 वर्ष जब मिस्र में रहे तो वो बहुत वहाँ पर बढ़ चुके थे, लाखों की तादाद में, और बहुत उनका वहाँ बिजनेस था। जैसे अमेरिका से लोग नहीं आना चाहते, मिस्र में से भी लोग नहीं जाना चाहते। खुदा ने क्या किया? खुदा ने उनके हालात ऐसे कर दिए। अगर खुदा उनको वहाँ से जबरदस्ती निकाल कर लाता ना, तो जो हाल उन्होंने मूसा का किया था ना, मोजज़ात की वसीला से हालात खुदा उनको लेकर आया है। अगर खुदा उनको जबरदस्ती डंडे के तौर पर लेकर आता, चलो थे जगह नहीं तुसी नहीं थे, तो उन्होंने मूसा को वही मार ही देना। खुदा ने हालात ऐसे पैदा कर दिए वहाँ पर। अब उनका दिल मिस्र से हटना शुरू हो गया, उनके साथ वहाँ पर बदसलूकी की जाने लगी और उनसे बेकार में काम लिया जाने लगा। खुदा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अपनी जुबान तो खुद ही कह दे, खुदा इंसान तो काटला सी नियत से रहना चाहते, खुदा हमें निकाल यहाँ से, हम नहीं रहना चाहते। खुदा ने हालात की जुबान से उनसे कलाम किया और लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने दुआ करना शुरू की। और कलाम में लिखा है, खुरूज की किताब में, जब लोग रोए चिल्लाए, कलाम में लिखा है कि लोगों का रोना चिल्लाना सुनकर खुदा मूसा पर साहिब। खुदा ने मूसा से कहा, अब मैं उतरा हूँ क्योंकि मैंने अपने लोगों का रोना चिल्लाना सुन लिया। खुदा हालात से उनसे बात कर रहा था और उन्होंने उस वक्त सुन लिया। आज खुदा मुझसे और आपसे भी हालात की जुबान से बात कर रहा है। हमारा खुदा से कैसा ताल्लुक है? क्या हमारा खुदा से ताल्लुक है कि हम उसको अपना बाप कह सके? क्या हमारा खुदा से ताल्लुक है कि वो हमें अपना बेटा बेटी कहे? हम खुदा से किस तरह से डील कर रहे हैं? हम खुदा से किस तरह से दुआ में वक्त गुजार रहे हैं? हम अपनी जॉब को कितना वक्त देते हैं? हम अपने बिजनेस को कितना वक्त दे रहे हैं? हम अपनी फैमिली को कितना वक्त दे रहे हैं? खुदा हालात की जुबान से उनसे बात कर रहे हैं। अगर आज हम उसकी आवाज पर कान धरे तो जैसे खुदा बनी इस्राइल को छुड़ाने के लिए उतर आया, खुदा ने मूसा से कहा, अब मैं उतरा हूँ, ताकि अपने लोगों को बहुत कम लोग इस हालात की जुबान को समझते हैं। खुदा ने बनी इस्राइल कौम से 5 बार लिखा है कि मैंने ये हालात भेजे, और आखिर में लिखा है तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लो। लेकिन आज वक्त है जब हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं, हम रुजू लाए। और 12वीं आयत में लिखा है, बस ऐ इस्राइल मैं तुझसे यूं ही करूंगा, चूंकि मैं तुझसे यूं ही करूंगा इसलिए ऐ इस्राइल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। आइए खुदा से मुलाकात की तैयारी करें, अपने बच्चों को खुदा के पास लेकर आए, उनको बताएं कि बेटा खुदावंद के घर जाने का वक्त है, खुदा की आवाज को सुनने का वक्त है। फिर से खुदावंद से अहद बांधे। कलाम में लिखा है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर हमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है तो खुदा हमसे कलाम करता है, मुलाकात की तैयारी करें। अगर आज हम अपनी जिंदगी में जिन हालात में मौजूद हैं, यहाँ नहीं रहना चाहते, आगे जाना चाहते हैं, तो खुदा से मुलाकात की तैयारी कीजिए। खुदा बुला रहा है आपको आपके प्रेयर चैम्बर में, दुआया कमरों में। दुआया कमरे जो सर्द हैं, खुदा चाहता है कि ये सरगर्म हो जाए। खुदा आपसे मुलाकात करना चाहता है, खुदा अपने आप को जाहिर करना चाहता है। जब भी हालात ऐसे अबतर हुए तभी खुदा ने अपने आप को जाहिर करना का मंसूबा जाहिर किया अपने लोगों के ऊपर। ये हालात हमें बताते हैं कि खुदा अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है। खुदा रोयाओं में, ख्वाबों में हमसे मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि खुदा ने नबी की मार्फत कहा था आखिर जमाना में बूढ़े ख्वाब देखेंगे, जवान रोयाएं देखेंगे। ये वक्त है
کہ خدا ہمیں رویائیں دے، یہ وقت ہے کہ خدا ہمیں خواب بخشے، یہ وقت ہے کہ خدا آسمان کو ہمارے لیے کھول دے، یہ وقت ہے کہ خدا ہم سے آڈیبل وائس سے بات کرے۔ خدا براہ راست اس دور میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فضل کا دور ہے، وقت قریب ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جتنا پہلے لوگوں کو ملا، ہم آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں، کسی بھی لمحے خداوند اب ظاہر ہونے والے ہیں۔ آئیے خدا سے ملاقات کی تیاری کریں، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔